بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. درود پڑھیے. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو مالک ہے اس جہان کا، ایسا رب، ایسا پروردگار کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور اتنا رحیم کہ اپنے بندوں کو اس جہان میں نعمتوں سے نوازا. مومنین کون سے تحفے، یہ صاحبان علم کا مجمع اور میں ایک ادنا طالب علم بلند اس لیے کہ آپ کو نظر آ سکوں، ورنہ میری کیا مجال کہ آپ سے بلند ہو سکوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سے تحفے ہیں جو پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں دیے، تاکہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر بسر کر سکیں. عزیزان محترم، پہلا تحفہ ہے قرآن اور دوسرا تحفہ ہے محمد و آل محمد، جن کے لیے پوری کائنات بنی، درخت بنے، پہاڑ بنے، پھول پودے بنے، چرند پرند بنے، دریا و سمندر بنے، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محمد و آل محمد کی محبت میں بنایا گیا. درود پڑھے. کیونکہ مجلس اشارے ثواب ہے ایک مرحومہ کی، جب 21 رمضان کو میرے آقا نے شہادت پائی تو یہ مرحومہ محبت علی میں جہاں کو چھوڑ کر اس جہاں میں چلی گئی جہاں نہ ہی تو صرف مولا علی کی کنیزی میسر ہوتی ہے بلکہ خاتون جنت کے پاؤں کی خاک میں جگہ بھی مل جاتی ہے. عزیزان محترم، جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو چاہنے والے غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن باعمل مومن مسکراتا ہوا اس جہاں سے منتقل ہوتا ہے، کیونکہ وہ قبر میں زیارت علی کا مشتاق ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے. امام قبر کا منظر بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک دم کچھ قبر میں ٹھنڈک آ گئی، کچھ نور آ گئے اور وہ آ کر بکھر گئے. ایک سرہانے چلا گیا، ایک مائنی چلا گیا، ایک دائیں چلا گیا، ایک بائیں چلا گیا اور ایک نور سامنے آ گیا، اور چھٹا نور جو سب سے زیادہ نورانی تھا وہ ان سب انوار کے اوپر اس طرح چھا گیا جیسے سب کا سردار ہو اور یہ سارے انوار اس کے غلام. اب اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب آنا چاہ رہا ہے، لیکن عذاب آ نہیں پا رہا، عذاب کو راستہ ہی نہیں مل رہا. سرانے سے آتا ہے تو وہاں سے نور روکتا ہے، پائنی سے آتا ہے تو وہاں سے نور روک لیتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو وہاں اس جانب سے نور روک لیتا ہے، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف سے نور روک لیتا ہے. اب وہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ہے کون جو مجھے بچانے آ گئے. اب وہ دیکھتا ہے کہ انوار نے ایک دوسرے سے خود سوال کرنے شروع ہو گئے کہ تم کون ہو. ایک نور نے بتایا کہ میں اس کی نماز ہوں، دوسرے نور نے بتایا میں اس کا روزہ ہوں، تیسرے نور نے بتایا میں اس کا حج و عمرہ ہوں، چوتھے نور نے بتایا میں وہ نیکیاں ہوں جو یہ زندگی میں کرتا رہا.
पांचवें नूह ने बताया मैं इसकी ज़कात हूँ। अब उन 5 अनवार ने मिलकर एक छठे नूह से पूछा कि तुमने अपना तारुफ नहीं कराया, तुम कौन हो? तो छठे नूह ने कहा मैं इसके सीने में मौजूद मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद हूँ। और फिर कहा कि मैं यहाँ हूँ इसीलिए तुम भी यहाँ हो, अगर मैं ना होता तो तुम में से कोई भी यहाँ नहीं होता। दुरूद पढ़िए नमाज बचाती है अदाब से, लेकिन वो नमाज जो मोहब्बत आले मोहम्मद के साथ अदा की जाए। रोजा बचाता है अदाब से, लेकिन वो रोजा जो मोहब्बत आले मोहम्मद के साथ अदा किया जाए। ज़कात बचाती है अदाब से, लेकिन वो ज़कात जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ अदा की जाए। हज उम्रा बचाता है, लेकिन वो हज उम्रा जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ अदा किया जाए। सबसे अव्वली शर्त मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है, और मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला मरता ही कब है। क्या खूबसूरत बात मेरे उस्ताद सिब्ते जाफर फरमा गए, मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या है डर, मौत से क्या खतर, इससे बचना भी क्या आ गई। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद क्योंकि आज शब जुम्मा है, और शब जुम्मा अरवाह मोमिनीन हमसे कुछ तलब करती है और ज़ेरे आसमान तशरीफ लाती है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके अमल की किताब अभी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि उसके कुछ सफ़ात अभी खाली होते हैं, और उन सफ़ात को मुकम्मल करना हमारा काम है। हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए हदिया दें और उनके लिए नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। हदिया सिर्फ रुपए या पैसे पे नहीं दिया जाता, बल्कि 1-2 रकात नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान पाक इस सफात को मुकम्मल करने में मददगार साबित होते हैं। और हदिया सिर्फ कोई अमीर आदमी ही नहीं कर सकता, बल्कि एक खजूर से किसी का रोजा अफ्तार कराना भी उतना ही सबब का उतने ही सवाब का बायस है जितना एक अमीर आदमी अपने मरहूमीन के लिए बढ़ चढ़कर करता है। परवरदिगार की बारगाह में तादाद नहीं देखी जाती, बल्कि नियत देखी जाती है। मोहतरम, आज की तारीख के लिहाज से क्या क्या बयान करूं। आज ना ही तो शब जुम्मा बल्कि शब कदर भी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब कदर को कोई समझ नहीं सकता, और ये कुरान की आयत है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। आज क्योंकि मरहुमा की मजलिस है तो और बीबी की कनीज की मजलिस है, तो जरूरी है बीबी सैयदा का भी जिक्र किया जाए। इमाम फरमाते हैं जिस तरह लैलतुल कद्र को कोई नहीं समझ सकता, इस तरह हमारी दादी फातिमा की अजमत को भी कोई नहीं समझ सकता। इमाम फरमाते हैं कि यहाँ पर परवरदिगार लैलतुल कद्र के बारे में जो बात कर रहा है वो असल में हमारी दादी फातिमा के बारे में बात कर रहा है। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हम आयमा को तमाम कायनात पर हुज्जत बनाकर भेजा, और जनाब सैयदा को हम आयमा पर हुज्जत बनाकर भेजा। यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद इस कायनात पर हुज्जत है, और सैयदा तमाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर हुज्जत है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम फरमाते हैं कि हमारी दादी फातिमा की अज़मत को कोई नहीं समझ सकता, जिस तरह शब कद्र को कोई नहीं समझ सकता, इस तरह हमारी दादी फातिमा की अजमत को कोई नहीं समझ सकता। हाँ दारों, मुसलमानों ने ना समझा इस बीबी की अजमत को, और बाद रसूल इसके ऊपर मसाइल उठा दिए। बीबी इतने मसाइल उठाए कि बीबी फरमाती थी कि बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइल उठाए गए कि अगर ये दिनों पर पढ़ते तो तारीकी रातों में बदल जाते, और अगर पहाड़ों पर पढ़ते तो वो रेता रेता हो जाते। बीबी बहुत कमजोर हो गई थी, हाथ में असा रहा करता था। रोज अपने बच्चों के साथ बैतुल हुज्र में जाती और रसूल के लिए रोया करती थी। 2 बच्चे रोज अपनी माँ के साथ जाया करते और शाम में वापस आते। बीबी बहुत कमजोर हो गई हैं,
दीवार पर हाथ रखकर चलती हैं, हाथ में असर रहा करता है। एक मर्तबा एक रोज फजर के बाद जब इमाम अली नमाज पढ़कर वापस आए तो देखा बीबी सारे काम जो ये देखा कि कल तक जो बीबी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी, आज वो सारे काम कर रही है, चक्की पीसकर फारिग हुई है और अभी घर में सफाई कर रही है और खाना बनाया जा रहा है। एक तरफ देखा धुले हुए लिबास रखे हुए हैं। इमाम हैरान हो गए कि इतनी कमजोर बीवी आज इतना काम कैसे कर रही है। पूछा, ए सैयदा क्या बात है, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? फरमाया, ए अबुल हसन, आज जब फजर से थोड़ी देर पहले मेरी कुछ लम्हे के लिए आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा आए हैं और मेरे बाबा के साथ मेरी माँ खदीजा भी आई हैं और मेरे बाबा कहते हैं, ए सैयदा हम तुम्हें लेने आए हैं, हम इसीलिए तुम्हारी माँ खदीजा भी आई हैं, अब तुम हमारे साथ चलो। तो बीबी फरमाती है, मैंने सोचा कहीं मेरे जाने के बाद लोग मेरे मातम में मसरूफ रह जाएं और मेरे हसनैन का कोई ख्याल न रख सके, इसलिए मैंने इनके लिबास धो दिए, इनके लिए अपने हाथों से खाना बना दिया। एक मरतबा इमाम अली बीबी ने हुजरे में गई और जनाब अस्मा से फरमाया, ए अस्मा मुझसे अब कोई बात ना करे, और बीबी चादर ओढ़कर लेट गई। जब इमाम अली हुजरे में आए तो देखा बीबी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। इमाम हुसैन को बेदार किया, कहा, फरमाया बेटा बाहर चले जाओ, मैं जरा गुस्ले मैयत दे दूं। इमाम ने गुस्ले मैयत देना शुरू किया, रो रहे हैं कि जब थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, फरमाया बच्चों जाओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। तीनों बच्चे चले गए मगर जनाब ज़ैनब नहीं गई। पूछा, बाबा आप इतना गुस्ल देते वक्त रो क्यों रहे थे? फरमाया, है बेटी ज़ैनब, जब मैंने पानी डालना चाहा तो कमर पर कोड़े का जख्म अभी तक डाला था। इमाम हसन माँ के पायती खड़े हैं और इमाम हुसैन माँ के सिरहाने खड़े हैं। माँ का आखिरी मर्तबा चेहरा देखा, आसमान की तरफ देखा, फरमाया, वाह गुरबता, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मैं गरीबुल वतन हो गया। रिवायात में है कि बंदे कफन टूटे, फरमाया, है मेरे लाल मेरे सीने से लग जा, मैं तेरी फरियाद गरीबुल वतन की फरियाद नहीं सुन सकती। मैं कहूँगा बीबी अभी तो मदीना शहर है, हुजरे की छत मौजूद है, अली जैसा बाबा मौजूद है, हसन जैसा भाई मौजूद है। अरे बीबी जरा असले आशूर में आइए, ना अली जैसा बाबा है ना हसन जैसा भाई है, और आपका हुसैन अकेला करबला के जमीन पर जुलजना से गिरा। यहाँ पर भी बीबी आई, तपती रेत पर बैठी हैं, आ मेरे लाल हुसैन मैं तुझे सहारा दूं। परवरदिगार हमारी इस बात को कबूल फरमा और हमारे वक्त के माँ के ज़ोर में ताजील फरमा और हम उनके इंसान